Assalamualaikum everyone. I hope everyone's fine. We're going to mark the attendance first. In this class, we have Ayan Mozam Ali, Ahmad Ali, Amna Said, Aksa Asif, Arisha Arshad, Ayan Amir, Azlan Mubashir, Bhumi, Bisma Siddiqui, Bisma Azam, Iman, Ishal, Faika, Fatma Wakas, Filza Basit, Harima Ahad, Hania Hukmaran, Mahad Mubin, Maher, Manajia Saqib, Maryam Naeem, Moiz Ali, Mujtaba Raza, Nabiha Awan, Naufal Khan, Rafe, रुमैसा, सफिया यूसुफ, सिद्दीका, सैयद मोहम्मद अहमद, सैयदा आमना अहमद, उमैर साबिर, जैन एहसन, येलेना, मिसबा रहमान, शिजा, and someone is trying to join with the name PC. Does anyone know who this PC is? किसी को पता है PC कौन है? Okay, everyone, I'm sharing my screen now, and I hope everyone can see my screen clearly and also listen to my voice. उम्मीद है कि सब लोग मेरे स्क्रीन को भी देख पा रहे होंगे और आवाज भी सबको आ रही होगी. So look at the board, everyone. What we were studying in the last class. In the last class, we had completed the topic of लियाकत अली खान. और लियाकत अली खान की गवर्नमेंट के हमने बहुत सारे एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था जो कि एग्जाम में आ सकते हैं. वी आल्सो सॉल्व द 7 मार्कर ऑफ अक्टूबर नवंबर 2011. इस सवाल को भी हमने सॉल्व कर लिया था. So in today's class, we're going forward and we're going to move on to the next topic, that is Malik Ghulam Muhammad and Khwaja Nazimuddin. बट बिफोर वी प्रोसीड एवरीवन, आई वुड वांट यू ऑल के साथ साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते रहें ताकि ये सारी कंफ्यूजन एक ही दफा में दूर हो जाए. सो मेक द नोट्स एवरीवन, राइट डाउन. द फर्स्ट गवर्नर जनरल was Muhammad Ali Jinnah and the first prime minister was Liaquat Ali Khan, but Jinnah died in 1948. So this meant that there was a need for second governor general, and so the seat was vacant for the second governor general. The second governor general of Pakistan was Khwaja Nazimuddin. So Khwaja Nazimuddin became the second governor general of Pakistan. Meanwhile, we had the first prime minister, and the first prime minister was still Liaquat Ali Khan. Lekin Liaquat Ali Khan was assassinated. He was assassinated in 1951, and so there was a need for the second prime minister. The second governor general was still there, and his name was Khwaja Nazimuddin. So Khwaja Nazimuddin was still there on his position. We needed the second prime minister. The seat was vacant for the second prime minister. Second prime minister के लिए जो seat थी वो खाली हो गई थी. Now we needed a second prime minister, and there was a candidate for the second prime minister. This candidate was Malik Ghulam Muhammad. So this new candidate was Malik Ghulam Muhammad. लेकिन ख्वाजा नाजिमुद्दीन और मलिक गुलाम मोहम्मद दोनों ने आपस में negotiate किया, and both of them decided that ख्वाजा नाजिमुद्दीन would resign from governor generalship. ख्वाजा नाजिमुद्दीन would become the second prime minister of Pakistan. Khwaja Nazimuddin decided to become the second prime minister of Pakistan, leaving the designation of being the second governor general. उन्होंने गवर्नर जनरलशिप को छोड़ दिया और वो पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बन गए. सो ही बिकेम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान while leaving the governor generalship. So it meant that the seat was vacant now for the third governor general. The seat was vacant for थर्ड गवर्नर जनरल. थर्ड गवर्नर जनरल के लिए सीट खाली थी, जबकि हमारे पास सेकंड प्राइम मिनिस्टर आ गए, एंड सेकंड प्राइम मिनिस्टर इज ख्वाजा नाजिमुद्दीन. तो सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन है? ख्वाजा नाजिमुद्दीन है. Now, what Malik Ghulam Muhammad did, that Malik Ghulam Muhammad became the third governor general. So this is how he became the third governor general of Pakistan.
Now listen carefully, everyone, about the story of persuasion. कि who persuaded who? क्या मलिक गुलाम मोहम्मद ने ख्वाजा नाजिमुद्दीन को परसुएट किया कि आप बन जाएं प्राइम मिनिस्टर और मैं बन जाऊंगा गवर्नर जनरल? द थिंग इज दैट वी नॉट टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड्स प्ले. हम ये बच्चों के खेल की बात नहीं कर रहे हैं कि बच्चे होंगे और ना समझी में डिसीजन ले रहे होंगे. लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन, आप सब लोग बहुत गौर से सुनेंगे व्हाट वाज हैपनिंग. मलिक गुलाम मोहम्मद एंड ख्वाजा नाजिमुद्दीन बोथ बिलोंग टू द मुस्लिम लीग. सही है, दोनों ही किससे बिलोंग करते थे? दोनों ही मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे. एंड बोथ ऑफ देम हैड प्लेड देयर पार्ट इन द पाकिस्तान मूवमेंट, और दोनों ने ही पाकिस्तान मूवमेंट में अपना अपना रोल भी प्ले किया था ना. इट वॉज म्यूचुअली अग्रीड, इट वॉज म्यूचुअली डिसाइडेड, दोनों की मर्जी, दोनों की कंसेंट थी, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन वुड स्टेप डाउन फ्रॉम गवर्नर जनरलशिप, कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन गवर्नर जनरलशिप से स्टेप डाउन कर जाएंगे एंड ही वुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे. जबकि द कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर मलिक गुलाम मोहम्मद वुड इंस्टेड बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और जिन्हें प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था वो गवर्नर जनरल बन जाएंगे. नाउ व्हाई एम आई सेइंग कि ये मैनिपुलेशन से ज्यादा इट वाज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज इफ यू सी कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन कोई बच्चे तो नहीं है. ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा. ही मस्ट बी थिंकिंग समथिंग, कोई ना कोई तो रीजन उनके जहन में होगा कि व्हाई आई शुड बिकम द गवर्नर जनरल, कि मैं गवर्नर जनरल क्यों बनूं. आई कैन सी समवन हैज रेज्ड अप द हैंड, बट प्लीज जस्ट राइट योर क्वेश्चन ऑन द चैट, आई विल रीड दैट. अपना सवाल आप चैट पे लिख देना, आई विल रीड दैट एंड आई विल रिस्पॉन्ड. लेकिन बीच में अगर मैं रुक के आंसर करता रहूंगा तो फिर ये मेरी बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी, तो फिर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी. तो आप लोग मीनवाइल आपकी जो भी कंफ्यूजन है वो आप लोग चैट पे लिखते रहना, और जस्ट इन केस अगर मेरी बातों से वो कंप्लीट नहीं हुआ आपका सवाल, तो आई रीड योर क्वेश्चन एंड आई श्योरली आंसर दैट. सो लुक एट द बोर्ड एवरीवन. ख्वाजा नाजिमुद्दीन वाज द गवर्नर जनरल. व्हाट वाज गोइंग इन हिज माइंड? उनके दिमाग में क्या चल रहा था दैट ही डिसाइडेड कि मैं गवर्नर जनरलशिप को छोड़ देता हूं एंड रादर आई वुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर? तो क्या सोच के वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे? ना इफ यू रिकॉल के ख्वाजा नाजिमुद्दीन से पहले द प्राइम मिनिस्टर वाज लियाकत अली खान. द प्राइम मिनिस्टर वाज लियाकत अली खान. And while Liaquat Ali Khan was the prime minister, we say that he was the chief executive of the country. What is the meaning of the word chief executive? Chief executive का मतलब क्या है? कि chief executive का मतलब है that he was leading the government. He was leading the government, कि वो government को lead कर रहे थे. He was leading the government. अब क्योंकि वो गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे, बिकॉज ही इज प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, सबसे बड़ा मिनिस्टर, इसका मतलब ये है कि he had the main power over here. He could manage the affairs of the entire government. He could manage the cabinet. He could go on the foreign visits. Maybe he could manage all the ministers and their policies, etc. तो ये अच्छी खासी बड़ी पावर तो है जो कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर को चाहिए. So this could be the possible motivation. This could be the possible motivation for ख्वाजा नाजिमुद्दीन to become the prime minister. और यही motivation नजर आ रही है ख्वाजा नाजिमुद्दीन की कि maybe he wanted to be in the spotlight. He wanted the spotlight. He saw that Liaquat Ali Khan was in the spotlight, और Liaquat Ali Khan was running the government. So ख्वाजा नाजिमुद्दीन wanted to do the same. वो भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना चाह रहे थे. बट वेन आई सेड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जब मैंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहा, तो व्हाट वाज मलिक गुलाम मोहम्मद थिंकिंग? मलिक गुलाम मोहम्मद के दिमाग में क्या चल रहा है कि मलिक गुलाम मोहम्मद डज नॉट वांट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर. इंस्टेड मलिक गुलाम मोहम्मद वांट्स टू बिकम द गवर्नर जनरल. व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पर्सन माइंड? इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है कि ही वांट्स टू बिकम द गवर्नर जनरल एंड नॉट द प्राइम मिनिस्टर. नाउ फोकस एवरीवन, लेट्स सी व्हाट वाज हैपनिंग. When we talk about the governor general means the head of state. Governor general means the head of state. Not only that, according to the Government of India Act of 1935, पाकिस्तान में जो कानून आया था वो था Government of India Act 1935 का कानून था initially since 1947. Using this law, the Governor General had more powers. The Governor General had some emergency power. इनके पास कुछ emergency powers थी. Especially if you remember, there was also a power known as PRODA, Public and Representative Officers Disqualification Act. According to this law as well, the Governor General had the power
to dismiss anyone found involved in corruption or misconduct. तो इस तरह की बहुत सारी पावर्स थी जो कि गवर्नर जनरल के पास थी. So possibly this is what Malik Ghulam Muhammad wanted. Malik Ghulam Muhammad को ये पावर्स चाहिए थी. That is why he did not want to become the prime minister, and that is why he convinced ख्वाजा नाजिमुद्दीन कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन स्टेप डाउन कर जाए, मलिक गुलाम मोहम्मद स्टेप अप कर जाए, मलिक गुलाम गवर्नर जनरल बन जाएंगे, जबकि ख्वाजा नाजिमुद्दीन बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर. नाउ आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन. उम्मीद है कि सबसे क्लियर हो गया होगा. If it is clear, please click on the tick mark, everyone. Please click on the tick mark so that I would know कि concept आपके clear हो गया है. Okay, perfect. ख्वाजा नाजिमुद्दीन, सवाल ये है कि सर अगर उस टाइम पे गवर्नर जनरल के पास इतनी पावर्स थी तो ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने कैसे एग्री कर लिया. नाउ लिसन केयरफुली एवरीवन. ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने क्यों एग्री किया? ख्वाजा नाजिमुद्दीन एग्रीड बिकॉज ऑफ the powers of the prime minister, the specific powers of the prime minister. You know, not everybody wants to become the president or governor general in our country. ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे मुल्क में हर कोई चाहता है कि वो वजीर आजम या प्रेसिडेंट या गवर्नर जनरल बने. पीपल हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस. हर किसी की डिफरेंट प्रेफरेंसेस है. फॉर एग्जांपल, द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर आसिफ अली जरदारी was also previously the president. He never became the prime minister because he was never interested in becoming the prime minister. वो कभी interested ही नहीं थे कि prime minister बने. But there are people like Nawaz Sharif who became the prime minister 3 times क्योंकि उनकी preference थी कि वो prime minister बनना चाहते थे. There are two different mindsets of people and they want different types of powers. For example, someone wants the spotlight. The person wants to govern everything, manage everything. That person becomes the prime minister. And there are some people who want to, sit at their desk and manage some of the affairs, sign some of the documents, meet other people. Those people tend to become the governor general or the president. It's just like saying, "Ke, Sir Haitham, टीचर क्यों बने? Why not the principal? Why I do not want to become the principal? मैं प्रिंसिपल क्यों नहीं बनना चाहता? मैं प्रिंसिपल नहीं बनना चाहता. मुझे वो वाला काम पसंद नहीं है. मुझे इस तरीके से रोजाना की बुनियाद पे पढ़ाना अच्छा लगता है. When I get among the students and I teach them, I feel good. मुझे अच्छा लगता है. सही है. So different preferences for different people. Maybe he saw the spotlight that was with Liaquat Ali Khan. He wanted to get into that spotlight and he became the prime minister so that he could manage the government. Now look at the board, everyone. Let's discuss Khwaja Nazimuddin. Khwaja Nazimuddin remained as the second Governor General of Pakistan between 1948 and 1951, and then he became the second Prime Minister of Pakistan between 1951 and 1953. Now look at the board, everyone. सामने देखिएगा. Let us see the successes and failures of Khwaja Nazimuddin as the Governor General of Pakistan. Being the Governor General of Pakistan, Khwaja Nazimuddin ने क्या अचीव किया और क्या अचीव नहीं किया. Look at the board, everyone. It shows you a Venn diagram which tells you that the success of Khwaja Nazimuddin was that he did not interfere in the government of Liaquat Ali Khan. कि उन्होंने लियाकत अली खान की गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस नहीं किया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एवरीवन. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. व्हाई इज इट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वजह से है क्योंकि वी विल सी इन द अपकमिंग फ्यूचर. अभी हम देखने वाले हैं, आज की क्लास में हम देखेंगे ऐसे इंसिडेंट which show power struggle in Pakistan. Now what is meant by the power struggle? Power struggle means that in Pakistan the politicians wanted more power. They were struggling for power. They were competing against each other. Governor General versus the Prime Minister, Governor General versus other ministers, etc. etc. अगर यहाँ पे गवर्नर जनरल के पास पावर थी टू इवन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, he did not use such power. Even if he had the power of Prada, he did not dismiss Liaquat Ali Khan. He did not interfere in the government of Liaquat Ali Khan. He allowed Liaquat Ali Khan to rule freely. उन्होंने लियाकत अली खान को allow किया आपके freely rule कर सके. So this is the success of this person. Because of him, the government was running smoothly. Now, what else? Another success, everyone. Another success was that Basic Principles Committee was set up. Look at the board, everyone. The success was Basic Principles Committee was set up.
बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी मैंने आपको मंडे वाली क्लास में पढ़ाया था, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. कमिटी मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल. कमिटी मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल. बेसिक प्रिंसिपल्स मींस एक ऐसी कमेटी बनाई गई थी जिसका टास्क ये था टू राइट द बेसिक पॉइंट्स फॉर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. के पाकिस्तान के कानून में ऐसे कौन से बेसिक पॉइंट्स आएंगे उन्हें इंक्लूड करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनाया गया था. एंड दिस वाज मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजिमुद्दीन एंड प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान. क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ देम. बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी के बाद क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन आया. एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज अ सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट because in the future it was also used as the basic structure of the future constitution. पाकिस्तान में जो फ्यूचर में कानून बना है वो इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस करता था. Now there was a partial success, that is point number 6 everyone, which is the first draft of constitution. इस गवर्नमेंट ने पहला ड्राफ्ट लिखा था. मेकिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट was the success. ये कामयाबी था. पार्शियल सक्सेस इस वजह से लिखा है बिकॉज इट वॉज रिजेक्टेड, क्योंकि ये रिजेक्ट हो गया था, इस वजह से मैंने इसे पार्शियल सक्सेस लिखा है. बट देर वर सम फेलियर्स एज वेल. व्हाट वर द फेलियर्स? द फेलियर वॉज ही ऑल्सो वॉन्टेड उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान. अच्छा एक बात सुनना मेरी, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था. When Jinnah was the Governor General, Jinnah wanted Urdu as the national language. Then Liaquat Ali Khan was the Prime Minister. Liaquat Ali Khan wanted Urdu as the national language. Khwaja Nazimuddin was the Governor General. He wanted Urdu as the national language. But there is a very important problem over here, if you understand. East Pakistanis were unhappy with all these three politicians. East Pakistanis were not happy with Jinnah. East Pakistanis were not happy with Liaquat Ali Khan. East Pakistanis were not happy with Khwaja Nazimuddin because East Pakistanis wanted Bengali as the national language as it was spoken by 56% of the population. East Pakistanis हमेशा इसके against रहते थे. Khwaja Nazimuddin could not solve this issue. Neither could Jinnah and neither could Liaquat Ali Khan. Now then there was another failure of Khwaja Nazimuddin being the Governor General. That is, he spoke openly about the freedom of Kashmir, and so the relations with India were not good enough. इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो पा रहे थे. अब आप कहोगे कि सर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, बट स्टिल इंडिया इज द नेबर. रिलेशंस अच्छे होंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से मामलात होंगे. Now look at the board everyone. What happened then? In 1951, Liaquat Ali Khan was assassinated. The new prime minister was Khwaja Nazimuddin. He became the second prime minister of Pakistan, and then the new governor general was appointed. The third governor general of Pakistan was Malik Ghulam Muhammad, और Malik Ghulam Muhammad को पाकिस्तान का तीसरा गवर्नर जनरल बना दिया गया था. Now being the prime minister, अब बन गए ख्वाजा नाजिमुद्दीन, अब प्राइम मिनिस्टर बन गए. Now being the prime minister, being the second prime minister of Pakistan, he had some important achievements as well. अब उनकी कुछ और मजीद achievements थी. For example, during his time, the first census was conducted. पाकिस्तान में पहली दफा census हुआ था. Now what is census? Census is the calculation of population कि पूरे मुल्क में कितने लोग रहते हैं, हर फैमिली में कितने मेंबर्स रहते हैं. So the first census was done by the Prime Minister Khwaja Nazimuddin. This is the success of Prime Minister Khwaja Nazimuddin. What else? ख्वाजा नाजिमुद्दीन के दौर में एक और काम हुआ. A new housing scheme was launched known as नाज़िमाबाद. एक नई हाउसिंग स्कीम को लॉन्च किया गया जिसका नाम था नाज़िमाबाद. नाज़िमाबाद इज इन कराची, और नाज़िमाबाद आपने सोचा भी नहीं होगा पहले दैट इट वाज नेम्ड आफ्टर ख्वाजा नाजिमुद्दीन के. वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन के नाम पे रखी गई थी. नाजिम आबाद अपने नाम के ऊपर उन्होंने रखा था. In 1952, जूट प्रोसेसिंग प्लांट वाज सेट अप इन ईस्ट पाकिस्तान. ईस्ट पाकिस्तान में जूट प्रोसेसिंग प्लांट को सेटअप किया गया था ताकि पाकिस्तान वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को बना सके और बेच सके और ज्यादा रेवेन्यू कमा सके. इस वजह से जूट प्रोसेसिंग प्लांट को सेटअप कर दिया गया था. इन 1952 डिस्कवरी ऑफ सुई गैस वाज डन. पाकिस्तान में बलोचिस्तान में एक जगह है सुई जहां पे पहली दफा पता ये चला था कि यहाँ पे गैस के रिजर्व्स हैं. So it was another achievement of Khwaja Nazimuddin being the prime minister. Another achievement was कि Basic Principles Committee under the leadership of Khwaja Nazimuddin was able to make the second draft of constitution. तो पाकिस्तान के कानून का जो दूसरा ड्राफ्ट था
वो ख्वाजा नाजिमुद्दीन की गवर्नमेंट ने बनाया था। अब अच्छी खासी अचीवमेंट्स कंपाइल हो गई हैं। वी कैन नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन ऑन पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 of history workbook number 3A, history workbook number 3A, everyone. Whatever the achievements of Khwaja Nazimuddin are as the prime minister, those would be the achievements of Governor General Ghulam Muhammad as well, because Governor General and Prime Minister, both of them are the important designations of a government. एक की अचीवमेंट है तो दूसरे की अचीवमेंट भी है, एक के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं तो दूसरे के ऊपर भी ब्लेम करेंगे. So in your workbook everyone, and if you do not have the workbook right now, you can write in your copy as well. अपनी कॉपी के अंदर आप लोग साथ साथ में नोट्स भी बनाए और क्वेश्चन को कॉपी करके आप आंसर भी लिखिएगा. Write down everyone. As the second governor general, as the second governor general, he did not interfere in the government of Liaquat Ali Khan, and this government introduced objectives resolution and first draft. Full stop. As the second prime minister, he conducted first census, discovered sui gas, established jute processing plant, and also, बल्कि भी बाकी रह गया था, कॉमा के बाद लिखो, launched Nazimabad housing scheme and introduced the second draft of constitution. तो सारी की सारी अचीवमेंट्स को हमने यहाँ पर कंपाइल कर दिया है. दिस क्वेश्चन हैज नेवर बीन आस्क्ड इन द एग्जाम येट, बट इफ यू सी द ट्रेंड ऑफ द पास्ट पेपर्स, तो पास्ट पेपर्स में इस तरह के सवाल आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी जो एक रिसेंट सवाल आया है ना, वो आया है, डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर जुनेजो. अगर आप लोगों ने देखा पास्ट पेपर्स में, तो पास्ट पेपर्स में देखा होगा आप लोगों ने कि डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर जुनेजो के बारे में सवाल आया है. तो इस तरह से किसी भी प्राइम मिनिस्टर के बारे में सवाल आ सकता है. एंड आई यूज्ड टू टीच दैट इवन बिफोर it came in the past papers. The question is that if Khwaja Nazimuddin was East Pakistani, why did he support Urdu being the national language? These people were the close companions of Muhammad Ali Jinnah. ये जिन्ना के companions थे. Now, and they all agreed that Jinnah was the great leader. सब समझते थे कि जिन्ना जो है वो कायदे आजम है, सबसे बड़े लीडर हैं. So obviously everybody was kind of inclined towards the decision of Jinnah. ज्यादातर जो कंपेनियंस वो इसी तरीके से थे, डेडिकेटेड थे. लेकिन आई वुड से कि यहाँ पर उन्हें सोचना भी चाहिए था कि ईस्ट पाकिस्तानीज अगर चाह रहे हैं तो ईस्ट पाकिस्तानीज को फैसिलिटेट कर दिया जाए. यू डिड नॉट अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड द फर्स्ट ड्राफ्ट पॉइंट. ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के ऊपर हमने 4 मार्क्स का सवाल पिछली क्लास में सॉल्व किया था. फर्स्ट ड्राफ्ट के ऊपर हमने एक 4 मार्क्स का सवाल सॉल्व किया था और 7 मार्क्स का सवाल सॉल्व किया था अबाउट द क्रिटिसिजम्स ऑन द फर्स्ट ड्राफ्ट. सो अभी तो आपके पास पोर्टल का एक्सेस नहीं है, अभी किसी के पास भी पोर्टल का एक्सेस नहीं है. पोर्टल का एक्सेस वाज सस्पेंडेड फॉर एवरीवन, सबके लिए सस्पेंड कर दिया गया था. एंड इट वुड बी अवेलेबल फ्रॉम 3rd Feb से आपके पास दोबारा से अब पोर्टल का एक्सेस आएगा. अभी तक ड्राइव का एक्सेस था, अब पोर्टल का एक्सेस आएगा. आप सबसे मैंने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ले ली है. अगर आपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है
तो पोर्टल का एक्सेस आपको टाइमली नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप लोग मुझे जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करोगे। आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपका यूजर नेम पासवर्ड आएगा, और आपकी एक ही डिवाइस रजिस्टर हो पाएगी। एक ही डिवाइस से आप क्लासेस ले पाएंगे और एक ही डिवाइस से ही आप अपना लॉग इन कर पाएंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए। मल्टीपल डिवाइसेस या जैसी डिटेक्ट होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ऑल्सो इफ एनी वन ट्राइज टू रिकॉर्ड द स्क्रीन, तो स्क्रीन रिकॉर्ड अगर कोई भी करेगा उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि दिस पर्सन वाज ट्राइंग टू रिकॉर्ड द स्क्रीन, तो उसके ऊपर भी सस्पेंशन हो सकती है। दिस ऑल इज बीइंग डन टू प्रिवेंट फ्रॉम द प्राइवेसी ब्रीच। प्राइवेसी ब्रीच से प्रिवेंट करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। तो you'll have to wait for the portal access once again। एक दफा फिर आपको 3rd Feb को जब मिल जाएगा, उसके बाद से आपके पास सारी चीजें अवेलेबल होंगी। Now look at the board everyone। This brings us to the next topic, that is the second draft of constitution। अच्छा, मेरी बात को आप लोग बहुत गौर से सुनेंगे कि ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये पूरी कहानी एक दफा दोबारा से सुन लेना। 1947 में पाकिस्तान वाज यूजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे इसे इस्तेमाल कर रहा था। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। नाउ लुक एट द बोर्ड एवरीवन कि हुआ क्या कि because it was interim constitution, Pakistan was still in the dominion of British। पाकिस्तान अभी भी ब्रिटिश के डोमिनियन का हिस्सा था। इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन में जो भी किंग और क्वीन होंगे वो पाकिस्तान के भी किंग और क्वीन समझे जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन जिन्ना वाज अलाइव, तो जिन्ना ने इसका पहला स्टेप लिया। और पहला स्टेप क्या था इसका? पहला स्टेप ये था कि जिन्ना मेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जिन्ना ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो असेंबली है जिसका टास्क है कानून बनाना। उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप वाज टेकन बाय लियाकत अली खान। लियाकत अली खान और ख्वाजा नाजिमुद्दीन की जो गवर्नमेंट थी, इसने सेकेंड स्टेप लिया। वो सेकेंड स्टेप क्या था? सेकेंड स्टेप ये था कि दे मेड द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी से थर्ड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप वाज इट वाज एबल टू राइट द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को लिख दिया गया था। सो दिस वाज द थर्ड स्टेप। उसके बाद फिर फोर्थ स्टेप लिया गया एंड द फोर्थ स्टेप वाज द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां तक फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। उसके बाद फिफ्थ स्टेप आया एंड द फिफ्थ स्टेप वाज टेकन बाय ख्वाजा नाजिमुद्दीन एंड मलिक गुलाम मोहम्मद। दिस वाज द सेकेंड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पाकिस्तान के कानून का सेकेंड ड्राफ्ट बना दिया गया था। तो स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं कानून बनाने की तरफ। Now look at the board everyone, what happened next। उसके बाद की कहानी देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ? The second draft was introduced and according to the second draft of the constitution, the matter of Urdu and Bengali would be solved in the assembly by voting। होगा क्या कि उर्दू और बंगाली का जो इशू है वो असेंबली में सॉल्व करवाया जाएगा, वोटिंग से सॉल्व करवाया जाएगा। तो देयर वाज अ क्वेश्चन ओवर हियर कि सर ये अगर ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करते थे ख्वाजा नाजिमुद्दीन, तो ये सॉल्व क्यों नहीं करे? एटलीस्ट ही इज ट्राइंग नाउ। सही है, कम से कम कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की। ही इज सेइंग कि उर्दू और बंगाली का जो इशू है वो असेंबली में जाके सॉल्व किया जाएगा। सो आई थिंक दैट्स गुड बट दैट्स बैड एज वेल। ये सही चीज नहीं है। सही चीज क्यों नहीं है? जरा आप लोग बोर्ड के ऊपर देखो, आपको एक पॉइंट नजर आ रहा होगा। असेंबली में देयर वाज द बाइकैमरल सिस्टम ऑफ असेंबली having two houses, upper house and lower house, and in both the houses there was parity of seats। parity of seats का मतलब है 50% seats were given to East Pakistan while 50% seats were given to West Pakistan। it means what? अगर यहाँ पर वोटिंग भी करवा दूं मैं, अगर यहाँ पे मैं वोटिंग भी करवा दूं, मुझे बताओ क्या ये इशू सॉल्व हो जाएगा? राइट ऑन द चैट एवरीवन, मुझे बताओ आप लोग, क्या ये इशू सॉल्व हो जाएगा? अगर मैं वोटिंग भी करवा दूं असेंबली में तो क्या इशू सॉल्व होगा? डेडलॉक रहेगा। डेडलॉक क्यों रहेगा? क्योंकि आपस में कोई फाइनल डिसीजन ही नहीं हो पाएगा। 50% अगर कह रहे हैं कि हमें उर्दू चाहिए, 50% कह रहे हैं बंगाली चाहिए, दिस इशू वुड रिमेन अनसॉल्व। ये इशू ऐसे ही अनसॉल्व रहेगा। Another thing was the governor general means the head of state would be a Muslim। जो मुल्क का हेड ऑफ स्टेट है, जो मुल्क का गवर्नर जनरल है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही होगा।
Rights of minorities would be given. Minorities को उनके rights दिए जाएंगे. The cabinet would be responsible to the assembly and not the governor general. This is very very important point everyone. ये बहुत ही important point है, जरा आप लोग गौर करना है इसके ऊपर कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. Cabinet. What is the meaning of the word cabinet? Cabinet means the team of ministers. Cabinet means the team of ministers. The team of ministers would be responsible to the assembly and not the governor general. Not the governor general. What is happening over here? कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है? What is happening over here? He is trying to reduce the powers of governor general. What he's trying to do, he's trying to reduce the powers of governor general. Governor general की powers को reduce किया जा रहा है. Is this an example of power struggle? हाँ या ना? क्या ये power struggle की example आपको नजर आ रही है? Is this an example of power struggle? Yes, this is an example of power struggle. ख्वाजा नाजिमुद्दीन, as I said earlier, वो कोई बच्चे नहीं है. उन्हें पता है कि what he is doing. और मलिक गुलाम मोहम्मद भी कोई बच्चा नहीं है. He knows what he is doing. So over here, although Khwaja Nazimuddin became the prime minister, but he was trying to cut down the powers of the governor general. Now what do you think? गवर्नर जनरल को ये बात अच्छी लगेगी? कभी भी गवर्नर जनरल को ये बात कभी भी अच्छी नहीं लगेगी कि कोई इसकी पावर्स को कट डाउन करने की कोशिश करे. An Islamic council would be formed. एक इस्लामिक काउंसिल बनाई जाएगी. An Islamic council would ensure that all the laws are according to Islam. Islamic council इस बात को इंश्योर करेगी कि सारे के सारे laws according to Islam हैं या नहीं हैं. This draft of the constitution was rejected because East Pakistanis were against the parity of seats and they were against the making of Urdu as the national language. इस वजह से सेकेंड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया था. Now look at the board everyone. We have a question over here and the question is describe the second draft of constitution. Second draft of constitution के बारे में सवाल है कि second draft of constitution क्या था. Again this is an anticipated question. ये एक anticipated question है. अभी तक एग्जाम में ये सवाल नहीं आया है लेकिन फ्यूचर में कभी सोर्स वर्क में भी आ सकता है, कभी इवन 4 मार्कर्स के लिए भी आ सकता है. राइट डाउन एवरीवन. It was introduced by the government of Governor General Malik Ghulam Muhammad and Prime Minister Nazimuddin full stop. It promised bicameral assembly having parity of seats for East and West Pakistan. Full stop. It promised to solve the language issue by voting in the assembly. Full stop. It would protect the rights of minorities. Full stop. Only a Muslim could become the governor general. Full stop. Cabinet would be responsible to assembly and not the governor general.
not the Governor General. Full stop. Islamic Council would ensure all the laws are according to Islam. All the laws are according to Islam. Listen carefully, everyone. 4 मार्क्स के लिए you need to write 4 points. 4 मार्क्स के लिए आप 4 पॉइंट्स ही लिखेंगे, लेकिन अभी तैयारी की फेज में है और कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, तो इस वजह से आपको सारे पॉइंट्स लिखवा देता हूं. This brings us to the next question, everyone. And this next question would be about the dismissal of Khwaja Nazimuddin. So that is on page number 26, everyone. And the question is, why was Khwaja Nazimuddin dismissed in 1953? कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन को 1953 में क्यों डिसमिस किया गया था? बिफोर वी प्रोसीड एवरीवन, लिसन केयरफुली कि जो थर्सडे की क्लास है हमारी, कल वाली क्लास है थर्सडेज को, वी डूइंग द रिविजन, सही है? और अभी तक हमने रिवीजन क्लासेस में क्या पढ़ लिया था? वी स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 1 रिलीजियस रिफॉर्मर्स, और रिलीजियस रिफॉर्मर्स को हमने दोबारा से पढ़ लिया, दिस टाइम विद आल्सो सॉल्विंग द टॉपिकल पास्ट पेपर्स. साथ साथ में टॉपिकल पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व कर लिया था. इफ यू रिमेंबर, लास्ट थर्सडे मैंने आप लोगों को क्लाइमेट का चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था, दैट टू विद द टॉपिकल पास्ट पेपर्स. सो डू नॉट मिस टुमारोज क्लास एवरीवन. कल की जो हमारी क्लास होगी, थर्सडे वाली क्लास जो हमारी कल की है, उसमें we'll be doing the topical past papers of climate, so everybody needs to attend that for sure. लाजमी अटेंड करना, ताकि साथ साथ में पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व करते रहें. एक्सप्लेनेशन भी होगी और साथ साथ में टॉपिकल पास्ट पेपर्स भी सॉल्व करेंगे. Now see the problems faced by ख्वाजा नाजिमुद्दीन everyone, कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस किया था. सबसे पहला, criticisms over the second draft of constitution. The East Pakistanis were against it. East Pakistanis wanted more seats in the assembly according to population, and they wanted Bengali as the national language. Secondly, the East Pakistanis launched a movement known as the Bengali language movement. East Pakistanis ने एक movement को launch किया जिसका नाम था Bengali language movement. और ये जो Bengali language movement थी, this was initiated by the students of East Pakistan. They were protesting against the government of Khwaja Nazimuddin as they wanted Bengali to be made the national language. But unfortunately, the police was there to counter the protests. पुलिस का काम क्या होता है? पुलिस का काम होता है कि प्रोटेस्ट को काउंटर कर सके. तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस फायर्ड अपॉन 2 बंगाली स्टूडेंट्स. 2 बंगाली स्टूडेंट्स की डेथ हो गई, जिसकी वजह से मजीद प्रोटेस्ट बढ़ते गए, केओस बढ़ता रहा, and Khwaja Nazimuddin was unable to control the situation. There was another issue, and that is known as the anti-Ahmadiyya riots. Now, who are the Ahmadis? Ahmadis were the Qadianis. Who are the Qadianis? Qadianis were those people who claim to be the Muslims, but they do not accept the finality of prophethood. So, according to the Islamic principles, those people are not Muslims, they are portraying as Muslims. Now, what was happening during this time? If you remember, when Jinnah was the Governor General of Pakistan, in his cabinet, Jinnah had included an Ahmadi. Jinnah ने अपनी कैबिनेट में एक अहमदी को ऐड किया हुआ था, नॉन मुस्लिम को ऐड किया हुआ था. But now, during this time, the religious parties were against Khwaja Nazimuddin. Religious parties wanted the dismissal of Ahmadis from the administration. जो रिलीजियस पार्टीज थे, उनका कहना ये था कि अहमदीस को एडमिनिस्ट्रेशन से निकाल दिया जाए. Especially Jamaat Islami was leading the movement against the dismissal of Ahmadis from the government. What happened then? उसके बाद क्या हुआ? ख्वाजा नाजिमुद्दीन was unable to fulfill the demands. उन्होंने demands को fulfill नहीं किया. And so there was bloodshed, there was communal violence between the religious parties and Ahmadis in Lahore, which spread all over Punjab. हुआ ये कि एक दूसरे का कत्ल करना शुरू कर दिया. जो रिलीजियस पार्टीज थे, उन्होंने अहमदीस को मारना शुरू कर दिया. जो अहमदीस थे, उन्होंने रिलीजियस पार्टीज के लोगों को मारना शुरू कर दिया, और बहुत ज्यादा केओटिक सिचुएशन हो गई. ख्वाजा नाजिमुद्दीन इसे कंट्रोल करने में नाकाम रहे. He had to call in the army in Lahore to maintain law and order. तो यहां तक तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स पढ़ा दिए. This brings us to the last one, everyone. And this is about the Korean War between 1950
and 1953. Now, what was this Korean War? ये कोरियन वॉर वाला मामला है क्या? कोरियन वॉर वाला मामला ये था कि देयर वाज द वॉर गोइंग ऑन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. इन दोनों के बीच में जंग चल रही थी. एंड व्हाट पाकिस्तान वाज डूइंग, दैट पाकिस्तान वाज सेलिंग एग्रीकल्चरल गुड्स टू देम. पाकिस्तान क्या कर रहा था कि पाकिस्तान उन्हें एग्रीकल्चरल गुड्स को बेच रहा था. Pakistan was selling jute, Pakistan was selling cotton, Pakistan was selling wheat, Pakistan was selling rice. तो जो भी कुछ पाकिस्तान बेच सकता था उस जमाने में पाकिस्तान के पास यही चीजें थी, पाकिस्तान इन्हें बेच रहा था. When Liaquat Ali Khan was alive, Pakistan was selling these things and Pakistan's exports were increasing. पाकिस्तान के exports बढ़ रहे थे. लेकिन आप ये भी तो सोचो कि इतना सारा अगर खाना है वो हम दूसरे लोगों को एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारे मुल्क में कभी ना कभी तो शॉर्टेज होगी. व्हाट हैपेंड देन? इन 1953 पाकिस्तान स्टार्टेड टू फेस द फूड शॉर्टेजेस. पाकिस्तान में खुद में खाने की कमी हो गई. नॉट ओनली दैट, पाकिस्तान डिड नॉट इवन हैव इनफ मनी. पाकिस्तान के पास पैसे भी नहीं थे कि पाकिस्तान खाने को इंपोर्ट कर सके. खाने की कमी क्यों हुई? व्हाई वाज पाकिस्तान फेस्ड विद द फूड शॉर्टेज? पाकिस्तान वाज फेसिंग द फूड शॉर्टेज बिकॉज in the last 3 years पाकिस्तान was exporting the food to other countries. पाकिस्तान क्या कर रहा था? दूसरे कंट्रीज को फूड एक्सपोर्ट कर रहा था. तो अपने पास इतना सरप्लस ही नहीं रहा आपके पास कि आप उसे अपने डोमेस्टिकली यूज कर सकें. ऑल्सो ईस्ट पाकिस्तान में तो अक्सर कभी फ्लड्स आ जाते थे, कभी डिस्ट्रक्शन हो जाती थी, क्रॉप्स उसमें भी खराब हो जाते थे. तो पाकिस्तान में फूड शॉर्टेजेस हो गई थी. अच्छा, फूड शॉर्टेजेस हो गई. दूसरा सॉल्यूशन क्या होता है कि वी कैन बाय फूड फ्रॉम अदर कंट्रीज, कि हम दूसरे कंट्रीज से फूड खरीद लें. लेकिन इंपोर्ट करने के लिए पैसे तो चाहिए, और पैसे इस टाइम पर हमारे पास इतने नहीं थे कि हम खाने को इंपोर्ट कर सकें, क्योंकि आर एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन. हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो डिक्लाइन कर रही थी. एक्सपोर्ट्स वर डिक्लाइनिंग बिकॉज द कोरियन वॉर एंडेड. क्योंकि जो वॉर थी वो खत्म हो गई थी. अब पाकिस्तान के पास पैसा भी नहीं था. तो ना पैसा था, ना ही खाना था. ख्वाजा नाजिमुद्दीन was unable to manage the food crisis. He was unable to tackle the food crisis. Food crisis को manage नहीं कर पा रहे थे. And so in 1953, Governor General Malik Ghulam Muhammad dismissed Prime Minister Khwaja Nazimuddin on the excuse of incompetence. तो गवर्नर जनरल ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया और प्राइम मिनिस्टर नाजिमुद्दीन को डिसमिस कर दिया. एक्सक्यूज ये दिया कि ख्वाजा नाजिमुद्दीन इनकॉम्पिटेंट हैं और वो ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहे, मैटर्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे. इस वजह से ख्वाजा नाजिमुद्दीन को डिसमिस कर दिया गया. दिस वाज द एंड ऑफ ख्वाजा नाजिमुद्दीन. अब्दुल्ला, यू कैन सर्च फॉर इट योरसेल्फ. ढूंढ लो उसे कहाँ पे होगा. मैं तो अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना. नाउ राइट डाउन एवरीवन. This is the question. Why was Khwaja Nazimuddin dismissed in 1953? Why was Khwaja Nazimuddin dismissed in 1953? 7 marks, everyone. Write down. One of the reasons behind the dismissal of Khwaja Nazimuddin was that he could not frame the constitution full stop. Second draft was rejected by the East Pakistanis who wanted more seats and Bengali as the national language. Full stop. So Bengali language movement was launched to protest
against the government, but in an incident, police shot two Bengali students, which led to chaos, and Nazimuddin could not control it. Could not control it. नाजिमुद्दीन उससे कंट्रोल करने में नाकाम रहे थे. One of the reasons behind the dismissal of Khwaja Nazimuddin was that he could not frame the constitution. Second draft was rejected by East Pakistanis who wanted more seats in Bengali as the national language. So Bengali language movement was launched to protest against the government, but in an incident, police shot two Bengali students, which led to chaos, and Nazimuddin could not control it. Second paragraph, everyone. इस पॉइंट पर नहीं लगाया था. Secondly, he was unable to control the communal violence in Punjab due to anti-Ahmadiyya riots, which began when Nazimuddin did not dismiss the Ahmadis from the administration on the demand of religious parties. Full stop. Ultimately, army was called to manage the law and order. Last one, everyone. आखिरी लिखेंगे. Lastly, he was unable to prevent from the food crisis, which happened due to the decline in exports as the Korean War ended in 1953. Full stop. So the Governor General Malik Ghulam dismissed Prime Minister Nazimuddin on the excuse of incompetence. तो 3 रीजंस मैंने आपको बता दिए, और इन 3 रीजंस की वजह से फाइनली ख्वाजा नाजिमुद्दीन को डिसमिस कर दिया गया था. This was the end of Khwaja Nazimuddin, everyone. The next topic is about Malik Ghulam Muhammad and Muhammad Ali Bogra. अगला जो टॉपिक है वो मलिक गुलाम मोहम्मद और मोहम्मद अली बोगरा की गवर्नमेंट के बारे में है. The first thing that you see over here was describe the achievements of Malik Ghulam Muhammad. कि मलिक गुलाम मोहम्मद की क्या achievements थी,
थोड़ी अचीवमेंट्स तो हमने अभी पढ़ ली हैं। कौन सी अचीवमेंट्स हमने पढ़ ली हैं? हमने पढ़ लिया है अभी तक के हिज अचीवमेंट वाज बिकॉज ही वाज विद द गवर्नमेंट ऑफ ख्वाजा नाजिमुद्दीन, एंड देन देयर वाज अनदर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा। तो ये वाली गवर्नमेंट को तो हम जानते हैं। इस गवर्नमेंट की अचीवमेंट क्या थी? इस गवर्नमेंट की अचीवमेंट ये थी कि इस जमाने में देयर वाज दी सेंसस, इस जमाने में सेंसस हो गया था। इस जमाने में सेकेंड ड्राफ्ट आ गया था। इस जमाने में हाउसिंग स्कीम यानी कि नाजमाबाद को लॉन्च कर दिया गया था। इस जमाने में एक और भी काम हुआ था कि सुई गैस को डिस्कवर कर लिया गया था। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में ये भी हुआ था कि जूट प्रोसेसिंग प्लांट को लॉन्च कर दिया गया था। तो ये काफी सारी अचीवमेंट थी। इसकी किसकी अचीवमेंट थी? दिस वाज द अचीवमेंट ऑफ मलिक गुलाम मोहम्मद प्लस ख्वाजा नाजिमुद्दीन। बट वी ऑल्सो नीड टू इंक्लूड सम ऑफ द अचीवमेंट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ मलिक गुलाम मोहम्मद एंड मोहम्मद अली बोगरा। इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर आए उनके नाम था मोहम्मद अली बोगरा। तो इस वाली गवर्नमेंट में भी कुछ अचीवमेंट्स थी। फॉर एग्जांपल इनकी अचीवमेंट ये थी, दे वर एबल टू सॉल्व द फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस को उन्होंने सॉल्व कर दिया था। किस तरीके से किया था? आई जस्ट शो यू। फूड क्राइसिस को सॉल्व कर दिया था। ना सिर्फ फूड क्राइसिस को सॉल्व किया था बल्कि बेहतर प्लानिंग के लिए एक कमीशन भी बनाया था, और उसने पाकिस्तान के लिए एक प्लान बना के दिया था। तो 5 years प्लान वॉज ऑल्सो मेड। 5 years प्लान को बनाया गया था फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था। पाकिस्तान ऑल्सो ज्वाइंट सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सीटो एंड सेंटो। पाकिस्तान ने कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी ज्वाइन किया था, जैसे कि सीटो और सेंटो को भी ज्वाइन किया था। नाउ लुक एट द बोर्ड एवरीवन। आज की क्लास को खत्म करने से पहले बस एक आखिरी चीज आपको बताऊंगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा, तो मोहम्मद अली बोगरा वाज प्रीवियसली द एम्बेसडर टू यूएसए। वो यूएसए में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे। ही यूज्ड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन यूएसए। He was less experienced as compared to Khwaja Nazimuddin, but he was appointed as the prime minister in 1953. He solved the food crisis by bringing aid from USA, Canada, and Australia. Million tons of wheat was brought in Pakistan, which solved the food crisis. 5 years plan was made. He joined CETO and CENTO. These were the international organizations so that Pakistan could get the Western aid, Pakistan could get money, weapons, and industrial experts from these countries. We're going to continue from here, everyone. यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो अब हमारी मंडे वाली क्लास होगी उसमें यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जो कल वाली क्लास है, थर्सडे वाली क्लास है, उसमें विल बी डूइंग द चैप्टर ऑफ क्लाइमेट। सही है? तो कल वाली क्लास सेम टाइम 9:30 पर ही होगी, एंड इन दैट विल बी डूइंग द चैप्टर ऑफ क्लाइमेट एवरीवन। That's it for today's class, everyone. If you have any question, you can write me a message on WhatsApp. आप एक WhatsApp के ऊपर मैसेज कर देना। मैंने ये कई दफा बता दिया है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। द पोर्टल वुड बी एक्टिव फ्रॉम 3rd of Feb। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट सेंड मी द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट। आप लोग मुझे बस जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मैंने कहा है वो आप लोग मुझे भेज दोगे। उसके बाद 3rd Feb को आपके लिए एक्टिव हो जाएगा। अभी किसी के लिए भी एक्टिव नहीं है पोर्टल। The recorded lectures access has been suspended for everyone. There is no drive right now. कोई ड्राइव आपके लिए नहीं है अवेलेबल। एक पोर्टल है, वो पोर्टल के ऊपर होगा एक LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, और उसी के ऊपर फिर आपको सारा कंटेंट मिलेगा। This is being done to prevent from the security breaches. Arisha, message me on WhatsApp. मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, तो मैं आपके मसले का हल बताता हूँ।